Welcome back to the channel of Chem Pacific. In this video, I'm going to discuss with you about a very important topic, that is the metal-olefin complex or the Ziese salt from the chapter Organometallic Chemistry. Before we get started, if you're new to our channel, don't forget to subscribe to our channel and press the bell icon. And also, if you like your video, to press the like button. Now, let's get started. Now, in this video, we are going to discuss about a very important topic, that is the Ziese salt. Now, the first thing what I would like to highlight to you is the inorganic nomenclature. Inorganic nomenclature हम कैसे करते हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देती हूँ. तो यू सी यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है, यू कैन सी अ थर्ड ब्रैकेट. तो थर्ड ब्रैकेट के अंदर द नेचर ऑफ बॉन्ड जो होता है, दैट नेचर ऑफ बॉन्ड इज ऑलवेज द कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, एंड outside the third bracket this is the ionic bond. So this is the ionic bond. तो फिर inorganic nomenclature में the representation is like this. When you are representing the cation, you have to write the first letter of this has to be the capital letter. So cation जो है वहाँ पे is because it is potassium, so we are writing potassium, right? And then comes the third bracket nomenclature. जब आप third bracket के nomenclature करने वाले हो उस टाइम आपके कोई भी स्पेस नहीं होता है. Since आपने यहाँ पे कैटायन जो है आउटसाइड द थर्ड ब्रैकेट नोमेनक्लेचर आप कर रहे हो यहाँ पे, इसलिए पोटेशियम के बाद आप करोगे स्पेस. उसके बाद यू सी देयर आर बेसिक मोस्टली टू डिफरेंट लिगैंड्स. वन इज द क्लोरो, ठीक है, एंड द अदर इज द इथिलीन इन द ईटा2 मोड, ठीक है. सो इसके बाद हमें जो करना है वो है हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है, ठीक है. Since you have 3 chlorine atoms, so you can say potassium trichloro, ethylene is in the eta2 mode, eta2 ethylene, then you have the metal. Now this is the complex is, you see the third bracket is negatively in charge. So whenever it is going to be negative in charge, तो metal at हो जाते हैं, metal plus at, ठीक है. जब negative in charge आपका complex हो जाएंगे तब उसका nomenclature हो जाएंगे metal plus at. मतलब यहाँ पे है आपका platinum तो हो जाएंगे platinate, ठीक है. अगर कोबाल्ट होता कोबाल्टेट, आयरन होता फेरेट, ऐसा है. सो metal plus at, so that is why यहाँ पे हो जाएंगे आपका नाम एज बिकॉज इट इज प्लैटिनम, सो नाम हो जाएंगे प्लैटिनेट. क्लियर. एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया, अगर दो डिफरेंट टाइप ऑफ लिगैंड्स रहते हैं, द वन विच इज अल्फाबेटिकली जो पहले आएंगे, सिंस क्लोरो का सी अल्फाबेटिकल पहले है तो ट्राइक्लोरो, और इथिलीन का ई है पहले तो इसलिए वो सेकंड में आएंगे, इसलिए पोटेशियम ट्राइक्लोरो eta2 इथिलीन प्लैटिनेट. नाउ वन मोर थिंग, और एक ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे करना है, वो है हमने फर्स्ट लेटर ही कैपिटल लिए थे, उसके बाद कोई भी लेटर हमने कैपिटल नहीं लिया है. द फर्स्ट लेटर ऑफ द नोमेनक्लेचर इज ऑलवेज द कैपिटल लेटर, और उसके बाद कोई भी कैपिटल लेटर में नहीं आएंगे. दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट. एंड ऑल्सो आप देखेंगे जो हमने थर्ड ब्रैकेट का नोमेनक्लेचर किया है वहां पे कोई भी स्पेस नहीं है. द स्पेस इज ओनली बिटवीन द cationic species, this is the potassium, and then the third bracket species. Okay. Now, whenever this third bracket or the complex is anionic in nature, तो metal के साथ 8 हो जाता है. Now you have to find the oxidation state of the metal. So let us consider the oxidation state of the metal to be X. ठीक है, X लेते हैं. You are having 3 chloride form. ठीक है, each having valency -1. Ethylene is 1 with 0 which is neutral is equal to -1. ठीक है, क्योंकि इसका चार्ज हो गया आपका -1. ठीक है, so therefore X is equal to 3 - 1 which is equal to 2. So this oxidation state of metal in case is +2. Clear? So this is +2 and you name it in the, you represent it or depict it in the Roman form. So इसका inorganic nomenclature हो गया potassium trichloro eta2 ethylene platinate 2. 2 is the oxidation state. I hope आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया inorganic nomenclature. Now let us move on to the Ziese salt.
Now Ziese salt जो है, this is the compound which has been invented by Ziese. So it is named as a Ziese salt. So this is the first organometallic compound, and here is its reaction. Now I always say you that students always remember that chemistry जो होता है, this is an experimental study. That's why we give a lot of emphasis on the observation. So observation बहुत बहुत ज़्यादा significant role play करते हैं. तो पहले हम ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्या क्या एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हमें मिले हैं, उसके बाद हम उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. नाउ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड दैट जो C double bond C है, this is perpendicular to the plane of the molecule, to the plane of the platinum and the C3Cl minus ions with nearly equal PTC distance. And the second observation is, this is also very important observation, जो PTCl bond है, जो PTCl distance which is trans. Now this is very important. ये बात बहुत important है. Only the PTCl distance which is trans to the ethylene, which is trans to the ethylene is longer than the other PTCl. ठीक है? And next you have that the distance in the ethylene is longer than the free C2H4. So these are the observations it has been found. ठीक है? And also it has been found that there is a parallel decrease in the C double bond C stretching frequency in the Raman spectrum of ethylene. ठीक है? And ये observations हो गए. और also the ethylene molecule differs from the planarity. तो मैंने बहुत अच्छे से ये नोट फॉर्म में दिया है ताकि स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से फायदा हो जाए इससे, और इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल का सिग्निफिकेंस भी स्टूडेंट्स को रियलाइजेशन हो जाए. और यहाँ पे दिया द 4 हाइड्रोजन दे आर टिल्टेड बैक. तो ऑब्जर्वेशन समझ में आ गए. मैं फिर से डिटेल में आपको ये ऑब्जर्वेशन समझाती हूँ और धीरे धीरे आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको देती हूँ. तो मैंने नोट फॉर्म में भी दिया और फिर मैं अभी इसे बहुत अच्छे से आप लोगों का भी एक्सप्लेन करूँगी. ना देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये था दैट ये जो इथिलीन है इट इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूल, टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल. ठीक है? सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये था, इसके बारे में मैं पहले डिस्कस कर लेती हूँ दैट अगर आप बॉन्ड लेंथ देखते हो, स्टडी करते हो, तो आप देखेंगे दैट द PTCl bond which is trans to the ethylene is 234 picometer. बाकी जो है वो है 230. So this is 234 picometer and this is comparatively longer as compared to other PTCl. Why it is longer? Which one is longer? Which is trans to the ethylene. Clear? ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट ये आपको देखना है कि बेसिकली अगर कोई बॉन्ड लेंथ है विच इज अ बिट लॉन्गर, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द लिगैंड विच इज प्रेजेंट एग्जैक्टली ट्रांस टू इट. सो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझना है. तो ये इसका जो लेंथ है ये डिपेंड करता है कि कौन सा लिगैंड इसके एग्जैक्टली ट्रांस में रहते हैं, और ट्रांस में ही इसका इफेक्ट होता है, अदर पोजीशन या सिस पोजीशन में नहीं होता है. एंड व्हाई इज इट सो? सो बिफोर आई प्रोसीड, बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल आपको बताती हूँ. देखो ए एंड बी इन दोनों में जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है नॉर्मली, बेसिकली इन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी होता है दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी. दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी. ठीक है? तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी में इन दोनों में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और वो बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है. मतलब दो ए एंड बी, दो एलिमेंट के बीच अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होना है तो उन दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी डिक्रीज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी अगर डिक्रीज हो जाएंगे फॉर एनी रीजन, देन द बॉन्ड बिकम्स वीकर, then the bond will become weaker, and the weaker bonds are always the longer bonds. ठीक है? and vice versa. ठीक है? अगर ये हो जाएंगे तो exactly इसका opposite आपको देखने को मिलेंगे.
तो मैंने कहा कि अगर ए एंड बी में जितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी की ज़रूरत है, अगर उतना अवेलेबल नहीं है, उससे अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी फॉर एनी अदर रीजन अगर कम हो जाता है, देन द बॉन्ड बिकम्स वीकर एंड द वीकर बॉन्ड बिकम्स लॉन्गर. नाउ यहाँ पे ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है ड्यू टू द पाई बैक बॉन्डिंग. ठीक है, तो हमें बहुत अच्छे से पाई बैक बॉन्डिंग समझना है, जो कि हम बहुत अच्छे से करेंगे. सो बेसिकली जो इथिलीन है, यहाँ इसका जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन है बिटवीन द मेटल एंड द इथिलीन, सो दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द pi bond of the ethylene, filled pi bond of the ethylene to the metal. This is the sigma bond formation. I'll definitely going to discuss in detail in my next point. And then you have the pi back bonding. Pi back bonding is basically formed by from the filled d orbital to the empty pi star bond. यहाँ पे the pi star bond is acting as the pi electron cloud density back bonding acceptor. Now what happens? Now as due to this pi back bonding, what happens? The electron cloud density जो है वो यहाँ पे जितना electron cloud density आपको हो रहा है, that is drifted in this direction for a better pi back bonding. As a result of which ये electron cloud density जब due to this pi back bonding जब ये anti bonding में accumulated हो जाते हैं, then the electron cloud density decreases, and since the electron cloud density decreases between the platinum and the chlorine bond, which is trans to the ethylene, as a result of which this bond becomes longer, which is trans to the ethylene and also weaker. I hope this is clear to all of you. Now next observation है that ये जो ethylene है, this is perpendicular to the plane of the molecule, and उसका एक ही आंसर है that this is due to the steric reason. ठीक है, एंड बाकी ऑब्जर्वेशन भी हम स्टडी करेंगे. बाकी जो भी आप ऑब्जर्वेशन देखेंगे, मतलब ये जो इथिलीन है, ये इथिलीन का जो विच इज कोऑर्डिनेटेड टू द मेटल, दिस बॉन्ड length is longer. This bond length is longer as compared to the free ethylene. क्योंकि यहाँ पे nature of the bond जो हम discuss अभी करेंगे, due to the pi back bonding क्या हो जाता है, anti bond जो pi star anti bond है, वहाँ पे इसके electron cloud density accumulated हो जाते हैं, as a result of which कोई भी electron cloud density अगर pi star anti bonding molecular orbital में accumulated होते हैं, तो उसकी वजह से वो डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर हो जाते हैं और वो बॉन्ड लॉन्गर भी हो जाते हैं. क्लियर? एंड यहाँ पे अगर हाइड्रोजन है, दीज आर ऑल्सो मूविंग बैकवर्ड एंड दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द पाई बैक बॉन्डिंग. सो पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या क्या चीज हमें देखने को मिलता है, हम एक बार रिकैपिचुलेट कर लेते हैं. सो ड्यू टू दिस पाई बैक बॉन्डिंग which is actually taking place from the filled d orbital of the metal to the empty pi star antibonding bond. ठीक है, and then this is first consequences ये है that this bond which is coordinated to the metal in Ziese salt, this bond length is longer. उसका मतलब ये बॉन्ड हो जाता है आपका वीक. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमने ये भी देखा है, द हाइड्रोजन्स आर नॉट इन द प्लेन. ठीक है, एंड द हाइड्रोजन्स दे आर नॉन प्लानर, दे आर मूविंग बैकवर्ड. ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज द PTCl bond which is trans to the ethylene is longer and weaker. ठीक है, सो ये सारे जो
हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन यही है. सो आई रिकैपिचुलेट. सो नोट डाउन द नोट विच इज ब्यूटिफुली गिवन इन माय वीडियो. हैव अ लुक एंड मैं आप ये लोग आप ये नोट्स देखो और मैं इसके साथ एक बार रिकैपिचुलेट कर लेती हूँ. सो आई ऑलवेज टेल यू दैट केमिस्ट्री इज एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी. सो वट एवर द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस आर ऑब्जर्व्ड उसके हिसाब से ही आपका थ्योरीज और पोस्टुलेट्स बनाए जाते हैं. इसलिए ऑब्जर्वेशंस केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ऑब्जर्वेशंस जो दिख रहे थे, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो था वो है ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड ये परपेंडिकुलर है एंड दिस इज ड्यू टू द स्टेरिक रीजन. ठीक है, स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से. ठीक है. नाउ ये है जो पीटीसीएल बॉन्ड विच इज ट्रांस टू द इथिलीन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. विच इज ट्रांस टू द इथिलीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये काफी लॉन्गर होते हैं ड्यू टू द पाई बैक बॉन्डिंग. ठीक है. फ्रॉम द मेटल feels d orbital of the metal to the pi star antibond of the ethylene. And then ये जो है, ये जो डिस्टेंस है, दिस इज एनफ लॉन्गर एज कम्पेयर टू Pc2H4. दिस इज ऑल्सो ड्यू टू पाई बैक बॉन्डिंग. ये भी हमने एक्सप्लेन किया है. एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द इथिलीन मॉलिक्यूल डिपर्स फ्रॉम द planarity and the 4 hydrogen atoms are tilted back to the plane. This is also due to बैक बॉन्डिंग. सो ये सारे ऑब्जर्वेशन हमें क्लियर हो गया और मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको बहुत अच्छे से दिया है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ लेट्स प्रोसीड. यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन देना है दैट यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज ड्यू टू द बॉन्ड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन. ठीक है. द बॉन्ड फॉर्मेशन इज मेनली टेकिंग प्लेस. It is not due to the lone pair of electrons. So this donor-acceptor interaction is between the filled pi and the empty or the vacant pi star molecular orbital. ठीक है. तो this is very important. Now let us मैं और एक बार बहुत डिटेल में आप लोगों को ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. This is the Dirac Duncanson theory. यहाँ पे I'm going to explain you the sigma bonding. ठीक है. तो एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे तो बहुत अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. ठीक है. नाउ सी, कभी भी आप कोई भी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना चाहते हो, इट हैज टू बी through electronic configuration because inorganic chemistry is nothing without electronic configuration. So platinum is having electronic configuration 5d9 6s1. Now platinum जो है हमने देखा platinum is now having oxidation state +2. So this is 5d8 6s0. ठीक है. So platinum is in +2 oxidation state. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देख लेते हो सिक्स एस and 6p. ठीक है. When it is 5d8, it is having 1 2 3 4 5 6 7 8. प्रीवियस वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट सी इंफॉर्मेशन दिए थे दैट बॉन्ड फॉर्मेशन इज अ वेरी स्टेबिलाइजिंग फैक्टर. ठीक है. और बॉन्ड फॉर्मेशन होने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन्स को रीअरेंज करना है, डेफिनेटली दे विल डू दैट बिकॉज बॉन्ड फॉर्मेशन होने से आपको स्टेबिलाइजेशन मिलता है उस कॉम्प्लेक्स को. सो कोई भी रीअरेंजमेंट करना है तो वो ज़रूर रीअरेंजमेंट करते हैं. एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये जो रीअरेंजमेंट होंगे ये वही ऑर्बिटल में होगा जिसका एनर्जी इनफ सिमिलर होते हैं ना. सब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 5d में है तो रीअरेंजमेंट होने में कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है. तो फिर दिस टू इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ द यहाँ पे जो नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन. ठीक है. तो यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ये क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे. ठीक है.
और उसके बाद आपके पास 4 लिगेंड है, यू हैव 3 Cl-, ठीक है, एंड 1 इथिलीन, ठीक है. They all are capable of forming the coordinate covalent bond because all of them can donate their lone pair of electrons to the vacant orbital, ठीक है, and then this electron cloud density will be shared by both of them. So as a result of which they can result in the formation of coordinate covalent bond. और यहाँ पे फिर कहाँ से क्या हो गया, ये हो गया आपका, ये है आपका D and you have 1s and 2p, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएंगे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन. नाउ अभी अगर ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, द फर्स्ट पॉइंट, देन ऑब्वियसली ये जब हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो जाता है, देन द ज्योमेट्री विल बिकम स्क्वायर प्लानर and the d orbital which is engaged in this is d x square minus y square. So this is the d x square minus y square orbital and sp2 hybridization, ठीक है. So these 3 points are very important whenever the hybridization is, I repeat, whenever the hybridization is dsp2 hybridization, then the geometry will turn out to be square planar and the d orbital which is engaged in the sp2 hybridization is d x square minus y square. Clear? So I hope this is clear to all of you. And नेक्स्ट जो थोड़ा सा बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, वो भी एक बार डिटेल में कर लेते हैं. तो आपको तो समझ में आ गया है व्हाई इट इज स्क्वायर प्लानर. तो अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट द सिग्मा बॉन्डिंग. Now see, you have two different type of bond. One is the pi bonding, another is pi anti bonding. So pi bond formation कैसे होता है, ये very easy है. मतलब अगर दो pi orbital, this is your pi bonding, दोनों में linear combination अगर होगा, this will result in the formation of the pi bonding molecular orbital. ठीक है. तो अगर इसे मैं ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ आपको, now this pi bonding molecular orbital is filled. Clear? So this is filled. Now platinum is having this dx square minus y square, जो आपका this हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये इसके साथ मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे इसका सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है. मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टाइम यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि देखो ये जो फिल्ड ऑर्बिटल वाज टॉकिंग अबाउट दिस बॉन्ड, ठीक है, कैसे ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है. तो प्लैटिनम के पास हमने देखा है कि इसके पास एक vacant dsp2 hybridized orbital है. So the one which is shaded is filled and the one, now symmetry is also very important. Plus plus symmetry में ही होगा, so you have to take care of the symmetry always. So the shaded one is always the filled one. ठीक है. So this is your filled. So this is your filled
pi bonding molecular orbital, ठीक है, and this is your empty dsp2, this is empty hybridized orbital. So the first thing is your sigma bond formation, which is actually taking place between the filled pi bonding molecular orbital and the empty dsp2 hybridized orbital, जो मैंने through electronic configuration भी आप लोगों को दिखाया. So this is your dsp2 hybridized orbital, which is your vacant, ठीक है, मैंने आप लोगों को दिखाया. और वहां पे जो 3 Cl माइनस लिगैंड है वो भी कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कर रहे हैं और ये भी कर रहा है. कैसे कर रहा है मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है. I hope this is very much clear to you. Next, we are going to move to the pi back bonding. Now, pi back bonding is taking place from the filled dxy orbital. ठीक है, जब आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम द लिगैंड टू द मेटल, उसकी वजह से मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी काफी एनहांस्ड हो जाता है. इन ऑर्डर टू गेट रीड ऑफ दिस, व्हाट हैपेंस, मेटल आल्सो यूजेस इट्स filled dxz orbital to the empty antibonding orbital on ethylene. Clear? As a result of which, what will happen? यहाँ पे जो आपका एंटी बॉन्डिंग जो है ये कैसे फॉर्मेशन हो जाता है, देखो इन दोनों में क्या है, अगर आप इसे लीनियर कॉम्बिनेशन कर रहे हो, नाउ the sign is going to be like this. Now plus and minus, they never result in the formation of bonding, so they will repel each other and result in the formation of anti-bonding molecular orbital. This is how it's going to look. So this is pi star molecular orbital of ethylene. Clear? Now let us now study कि कैसे इसका बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है. अभी क्या है, अभी मेटल का जो फील्ड डी एक्सिड ऑर्बिटल है, मेटल का जो फील्ड ऑर्बिटल है, नाउ यहाँ पे मेटल का फील्ड ऑर्बिटल है. ठीक है, whenever it is filled, I am definitely going to represent with the shaded portion. ठीक है, and the vacant orbital. And always आप एक चीज में बार बार बोल रही हो, सिमेट्री के ऊपर हमेशा ध्यान दीजिए. ठीक है, so this is the vacant, the one which is not in the shaded form is the vacant. तो यहाँ पे भी ये प्लस है तो ये भी प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस. So this is your vacant or empty pi star molecular orbital, and this is your filled d exit orbital. अभी इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी इज फ्लोइंग फ्रॉम द मेटल टू द वैकेंट पाई स्टार एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल. ये पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से, सिंस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी इज नाउ गेटिंग accumulated to the pi star molecular orbital, due to this pi back bonding, certain observations were actually followed or made. First ये था कि ये जो बॉन्ड है, since electron cloud density is now getting accumulated to the pi star molecular orbital, therefore this bond will turn out to be, bond length will be longer. ठीक है, and this will turn out to be a weaker bond. ठीक है, CC bond will be basically CC, carbon carbon double bond will be longer. And these hydrogens, they are going to move backward, and the PTCl bond, which is actually trans to the ethylene, will also turn out to be
लॉन्गर। सो ये पाई बैक बॉन्डिंग के सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो सारे कॉन्सिक्वेंसेस जो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को इन द नोट फॉर्म भी दिया है। सो यहाँ से आप स्टडी भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो। जब एक्सप्लेनेशन एंड एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल स्टूडेंट्स को मिलते हैं और उसके साथ जो कंबाइंड एग्जाम्स करते हैं तब जाके स्टूडेंट्स का प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाते हैं। और इसीलिए मैंने 9 साल मेहनत किया ये स्टडी मटेरियल्स आप लोगों के लिए बनाने के लिए, ठीक है। सो यू सी द कॉन्सिक्वेंसेस। द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस यही बोल रहे हैं दैट बॉन्ड लेंथ, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ है ये इसलिए इंक्रीज होते हैं फ्रॉम 1.344 टू 1.37 आर्मस्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ द पाई बैक बॉन्डिंग, ठीक है। एंड नेक्स्ट, because of the pi back bonding, because the electron cloud density is now getting accumulated to the anti-bonding pi star molecule orbital, which actually destabilizes the system. Clear? Next, the IR spectroscopy. Since the CC bond longer हो जाते हैं, weaker हो जाते हैं, और IR spectroscopy भी जो है, what will happen when it is attached to the metal? It will come down because stretching frequency जो है, now the stretching frequency 1 by 2 pi c root over k by mu, the stretching frequency of this bond is directly proportional to the bond strength and inversely proportional to the bond length. तो bond length increase हो जाता है क्योंकि वो bond काफी weak हो जाते हैं, इसके stretching frequency भी decrease हो जाते हैं। नाउ यहाँ पे हम पाई बैक बॉन्डिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फोसिस कर रहे हैं बिकॉज बैक बॉन्डिंग की वजह से ही सारे के सारे फेनोमेना आप लोगों को दिख रहा है। ये सारे जो भी हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसका एक ही आंसर है, पाई बैक बॉन्डिंग। इसलिए अगर जाइसे सॉल्व में कुछ क्वेश्चन सबको आ जाए, कुछ नहीं पता है तो पाई बैक बॉन्डिंग बोल दो, आपको कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिलेंगे बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड ऑल द ऑब्जर्वेशंस दैट आर बीइंग मेड, ठीक है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट ना, यहाँ पे एक चीज आप लोगों को देखना है, हम बात कर रहे हैं पाई बैक बॉन्डिंग। सो बहुत ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट को बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं पाई बैक बॉन्डिंग के। पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से दो चीज हो रहा है, इवन दो द फेनोमेना इज सेम बट स्टिल टू थिंग्स आर हैपनिंग। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, जब बैक बॉन्डिंग पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से मेटल एंड लिगेंड का बॉन्ड हो जाते हैं स्ट्रॉन्गर एंड लिगैंड का बॉन्ड जो है ये बॉन्ड बन जाते हैं वीकर, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच सेम एक्सप्लेनेशन है, ये जो बॉन्ड होगा सीसी डबल बॉन्ड, दिस बॉन्ड विल टर्न आउट टू बी लॉन्गर एंड वीकर। नाउ सी, ये पाई बैक बॉन्डिंग एक्सटेंसिव कब होता है? दो रीजन की वजह से। मैंने बोला मेटल एंड लिगैंड की वजह से लिगैंड में एक लेन देन हो रहा है, एक गिव एंड टेक प्रोसेस चल रहा है। ये गिव एंड टेक प्रोसेस कब होगा? जब मेटल बनेगा आपका इलेक्ट्रॉन रिच, मेटल बनेंगे आपको इलेक्ट्रॉन रिच एंड लिगैंड बनेंगे आपको नीडी और पुअर। नाउ नीडी कौन बना सकते हैं? अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अगर कोई जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच्ड, मतलब इफ द हाइड्रोजन आर सब्स्टिट्यूटेड बाय एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ना फ्लोरीन इज एन एग्जांपल, ये दूसरे भी हो सकता है। कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इफ हाइड्रोजन आर सब्स्टिट्यूटेड बाय एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, then it will make the ethylene more and more electron deficient, क्योंकि सारे के सारे since they are electronegative so they are going to withdraw the electron cloud density towards themselves, और फिर इथिलीन और भी नीडी हो जाएंगे और भी भूखे हो जाएंगे, ठीक है। एंड मैंने कहा मेटल शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेटल को हम इलेक्ट्रॉन रिच कर देते हैं, मतलब अगर यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा है दैट मेटल जो था, मेटल था आपका प्लैटिनम इन द 2+, मतलब अगर प्लैटिनम इन द 2+ जो कि D8 सिस्टम है, किसी वजह से अगर वो प्लैटिनम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है, अगर आप लिगैंड को न्यूट्रल लिगैंड कर देते हो सब्स्टिट्यूशन, एंड देन D8 अगर D10 में कन्वर्टेड हो जाएंगे, मतलब प्लैटिनम 2+ प्लैटिनम 0, मतलब D8 सिस्टम अगर D10 सिस्टम में कन्वर्टेड हो जाएंगे, दैट विल रिजल्ट टू मोर एंड मोर पाई बैक बॉन्डिंग।
ठीक है। सो पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये बॉन्ड लेंथ हो जाता है लॉन्गर एंड द बॉन्ड लेंथ लॉन्गर हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, एंड द बॉन्ड बिकम्स वीकर। बट ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड हो जाते हैं स्ट्रॉन्गर एंड शॉर्टर। ये बन जाता है स्ट्रॉन्गर एंड शॉर्टर। क्लियर? सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। अगर आप बहुत अच्छे से समझ जाते हो फिर बहुत अच्छे से आप स्कोर भी कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो दो रीजन मैंने आप लोगों को बताया उसकी वजह से पाई बैक बॉन्डिंग बहुत ही इंक्रीज हो जाते हैं और एक्सटेंसिव भी हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच, जो कि हमने एक ऑब्जर्वेशन में पढ़ाई किए थे, दैट ये जो एल्कीन है इन द ज़ाइसे सॉल्ट ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाते हैं। एंड अगर दो reason number one, that if the hydrogens in the ethylene they are substituted by electronegative element so that the electron cloud density is drifted more and more towards the electronegative element, that will result in more pi back bonding। and also यहाँ पे प्लैटिनम है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज अ D8 सिस्टम। अगर प्लैटिनम के बदले में पैलेडियम 0 विच इज द D10 सिस्टम में कन्वर्टेड हो जाता है, मतलब आपका मेटल बन गया इलेक्ट्रॉन रिच और लिगैंड बन गया नीडी और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज एंड हंग्री। अगर जब भी आपका ये एक्सटेंसिव हो जाता है, अब क्या एक्सटेंसिव हो जाता है, जब भी आपका पाई बैक बॉन्डिंग एक्सटेंसिव हो जाता है, बहुत इंक्रीज हो जाता है, तो पाई बैक बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पाई बैक बॉन्डिंग इंक्रीज हो जाएंगे। दिस विल रिजल्ट टू मोर एंड मोर पाई बैक बॉन्डिंग एंड देन व्हाट विल हैपन, देन the ethylene which is perpendicular to the molecular plane will come on the plane, and this sp2 hybridized orbital will get converted to sp3 hybridized ethylene। ठीक है, and this perpendicular ligand will turn out to in plane। ठीक है, so I hope you like this video, and I actually worked extremely hard to make this video. So if you really appreciate my hard work, please do press the like button and do write something positive in the comment section. That will actually encourage me a lot. Thank you for watching our video. Thank you.